to all dear students. Today I am coming here to discuss your unit 1, the last lesson from your main textbook, and that is flamingo. Okay, here is the name of your unit, the last lesson. Here is a list of so many unfamiliar words, and also here is a list of the phrases. But today I am going to discuss the remaining part of your book, and that's why you just take out the page number 7, and the paragraph of that page number is third paragraph, which I have already explained to you, but due to some little more summarize of this paragraph, I just want to give you such explanation of this paragraph due to this paragraph is important for your board exam also, that's why. Now line wise I just try to explain. After the grammar we had a lesson in writing. That day Mr. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, France. They looked like little flags floating everywhere in the school room. Now I just use optional language, and that language is your Hindi. After the grammar, it means सबसे पहले कौन सा यूनिट हुआ था? ग्रामर का यूनिट हुआ था. Then after he choose. Who choose? Mr. Hamill choose which section? Writing section. And he had also copies. उनके पास क्या थी? बहुत सारी copies थी. In that copies, उस सारी copies के अंदर there was a very big handwriting, and very big and round handwriting. There was a words just like, and that words denotes you the name of the country of the France, nothing else. Just like Lorraine, Alsace. Lorraine and Alsace is the districts of the France. France, Alsace in very big handwriting in each and every copies. So author thought like that. It was floating up the flags around my classroom, nothing else. They looked like little flag floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. It means desk से लेके बाहर की रोड साइड की बात करें तो वहाँ तक ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? गूंज रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं इन द एयर, हवा के अंदर. जस्ट लाइक यहाँ है अल्सासे, यहाँ है लॉरेंस, यहाँ है अल्सासे, यहाँ है लॉरेंस, लाइक दैट वे. You ought to have seen how everyone sat to work, and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper ones. And once some beetles flew in, but nobody paid any attention to him. Then after, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks, as if they was French too. On the roof of the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeon? Here the author thought like that. यहाँ जो नरेटर है वो ऐसा सोच रहा है कि अचानक से सडनली वन बीटल एंटर इन द क्लास. अचानक से एक जो भंवरा होता है, जो इंसेक्ट होता है, जो उड़ रहा है क्लास के अंदर, क्या कर रहा है? यहाँ वहाँ घूम रहा है. बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू दैम. पर कोई भी उसके सामने कोई अटेंशन कर रहा नहीं है. Even though each and every one was sat into their work, very utmost sincerely work was there done by them. मतलब वो अपना जो वर्क कर रहे थे वो बहुत ही सिंसियरली कर रहे थे. और वो जो बीटल एंटर हुआ क्लास के अंदर, उसके सामने भी उन्होंने फोकस किया नहीं. Even though लिटलेस्ट वन इट मीन्स व्हाट? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, जो किड होते हैं, वो भी they were also not paying any attention to that beetle. Okay. So I just thought like that. मैंने ये भी सोचा कि I also just thought here and there, and so here and there the scenario of the classroom, and I thought like that maybe pigeon was also on the roof. It means जो pigeon थे वो भी कहाँ थे? छत के ऊपर थे, और वो अपनी साउंड से क्या कर रहे थे? आवाज़ कर रहे थे, कू like that. तो वो ऐसा सोचता है कि maybe German also forced to speak कू इन द जर्मन लैंग्वेज. मतलब कि वो क्या करेंगे? पिजन को भी फोर्स करेंगे कि आप कौन से लैंग्वेज में स्पीक करो? जर्मन लैंग्वेज में स्पीक करो. दिस सेंटेंस शोज यू, ये सेंटेंस आपको ये दिखा रहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उन पर कितना बैन लग चुका है, और वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे. कब से? तो टुमारो ऑनवर्ड्स से. और अब से उनकी स्कूल के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? ओनली एंड ओनली जर्मन लैंग्वेज. एज यू नो दैट, आपको पता ही है कि ऐसा क्यों हुआ था. क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब
फ्रांस के लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज, सॉरी जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ेंगे. नाउ लास्ट पैरा ऑफ पेज नंबर 7. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Now, whenever I looked, मतलब कि जब भी मैं मेरे मास्टर हैमल को देखता था, मेरे टीचर को देखता था, I just felt like that, मैं ऐसा सोचता था कि he was trying to capture the atmosphere, last atmosphere of the class. वो ऐसा ट्राई कर रहा है कि ये जो मैं लास्ट टाइम मेरा जो लेसन दे रहा हूँ और इस टाइम पर जो भी माहौल है उसको मैं क्या कर दूँ, जस्ट मेमोराइज इन माई माइंड, मैं उसको क्या कर दूँ, होल्ड कर दूँ, कैच कर लूँ मेरे दिमाग के अंदर. और वो जो था एटमोस्फियर वो कैसा था, तो वो देख रहे हैं कि एवरीवेयर इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम के हर एक वॉल को बहुत ही शार्पली क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. देन आफ्टर ही जस्ट सो, वो क्या देख रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ द विंडो, विंडो के बिल्कुल सामने देयर वाज अ गार्डन, एक गार्डन भी था. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एंड कैच इट, वो उसको देख भी रहे हैं और दिमाग में सोच भी रहे हैं, उसको पकड़ के रखा कि ये मेरी विंडो है, उसके आगे क्या है, एक गार्डन है. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका जो क्लास है वो क्या है, गार्डन के सामने है. नेक्स्ट पेज नंबर 8 पेज नंबर, एंड दैट इज योर लास्ट पेज नंबर. जस्ट लाइक दैट only the desk and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. अब यहाँ वो ऐसा इसीलिए सोच रहे हैं बच्चों के सारी चीज़ों को वो क्या कर ले, अच्छे से याद कर ले, क्योंकि इन फ्यूचर के अंदर वो कभी भी ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे नहीं. और आफ्टर ऑल ही हैड हाउ मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस, 40 years of service, so that's why he just feel painful situation. वो कैसा फील कर रहा है, बहुत ही पेनफुल फील कर रहा है. On the other things he just observe that only the desk, it means in the classroom there was a desk and also benches, तो वो डेस्क भी देख रहे हैं, बेंचेस भी देख रहे हैं. they had been worn, मतलब वो क्या हो चुकी है, थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन में, नॉट टू मच वर्स्ट पर थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन में है, बट यट स्मूथ, पर फिर भी कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है. ही ऑल्सो ऑब्जर्व वन वॉलनट ट्रीज, उन्होंने एक वॉलनट ट्री देखा. दैट वॉज टॉलर एंड टॉलर, वो क्या होती जा रही थी, बहुत ही बड़ी होती जा रही थी. एंड ऑल्सो द होप वाइन प्लांट, होप वाइन भी एक प्लांट होता है बच्चों की, जो उन्होंने अपने हाथों से जब वो ज्वाइन हुए थे एज ए टीचर, तब उन्होंने क्या किया था, उसका प्लांटेशन किया था. बट राइट नाउ दैट प्लांट, होप वाइन प्लांट, डबलिंग इन द साइज, वो क्या हो गया है, साइज में डबल हो चुका है. दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, और वो कहाँ तक पहुँच गया, इट रिचेस अप टू द विंडो, इट रिचेस अप टू द विंडो, मतलब कि वो विंडो से बिल्कुल ऊपर जाके कहाँ पहुँच गया है, रूफ तक पहुँच गया है. हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट, ये सारी चीज़ें उनके दिल को क्या कर रही थी, तोड़ रही थी. टू लिव इट ऑल, ये सारी चीज़ें उनको क्या करनी थी, छोड़नी थी. विच टाइप ऑफ मेमोरीज ही हैड टू लेफ्ट, ओके, इन हिज माइंड. जस्ट लाइक हियर इज अ फोर क्लूज फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल 40 years ऑफ सर्विस, उनके कितने साल हो गए थे सर्विस के, 40 years हो गए थे. सेकेंड वन, उसका जो क्लासरूम था उसके बिल्कुल सामने क्या था, गार्डन था, इट मीन्स गार्डन फेसिंग क्लासरूम था, वो मिस करेंगे. दैन आफ्टर उन्होंने होप वाइन जो प्लांट था उनका प्लांटेशन अपने हाथों से किया था, वो अब कहाँ तक पहुँच गया है, विंडो को क्रॉस करके, अप टू विंडो, रीच द रूफ, कहाँ तक पहुँच गया है, रूफ तक पहुँच गया है. दैन आफ्टर उन्होंने वॉलनट जो ट्री है वो भी क्या हो गई है, ग्रू टॉलर एंड टॉलर, बहुत ही बड़ी हो गई है. एंड सडनली देयर वाज अ साउंड ऑफ हर हिज सिस्टर, अचानक से उनकी सिस्टर का क्या आता है, आवाज़ आ रही थी. एंड ऑल द students and also particular our narrator thought like that कि now she was prepared to leave this class with the luggage, मतलब कि अब वो क्या हो गई है, रेडी हो गई है अपने ट्रंक के साथ. ट्रंक इट मीन्स वन टाइप ऑफ, एक पेटी बोलते हैं, पटारा बोलते हैं, उसके अंदर उसने क्या कर दिया था, अपना सारा सामान रख दिया था, क्लोथ्स भी सारे रख दिए थे. एंड देन आफ्टर अब वो क्या करने वाले थे, लीव करने वाले थे. तो ये सारी मेमोरीज वो क्या कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे.
Now, poor man to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. Now, this line indicates you just like her sister was packing. वो क्या कर रही थी? पैकिंग कर रही थी ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे दे वर सपोज्ड टू लिव दिस प्लेस. ये प्लेस वो छोड़ के क्या करने वाले थे? जाने वाले थे. मास्टर हैमल एंड ऑल्सो हिज सिस्टर. नाउ सेकेंड पैरा ऑफ पेज नंबर 8. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, boo, ba, boo. Down there at the back of the room, old Husser had put on his spectacles and holding the primer in both hands, spelled the letters with them. Now this line indicates you the realization एंड ऑल्सो रिग्रेटफुल नेचर ऑफ द फ्रांस. फ्रांस क्या रिग्रेट कर रहा है, क्या रियलाइज़ कर रहा है कि आई हैड अ करेज, मेरे पास बहुत ही हिम्मत थी, टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड्स, हर एक वर्ड्स में क्या करूँगा? सुनूंगा. विच अटर्ड बाय मिस्टर हैमल, कि जो वर्ड्स किससे बोले जा रहे हैं? मिस्टर हैमल से बोले जा रहे हैं. एंड आफ्टर राइटिंग सेक्शन के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, मतलब कि हमको किस में पढ़ना था? अभी हिस्ट्री का यूनिट पढ़ना था, हिस्ट्री का लेसन पढ़ना था. And at that time the babies, it means littlest one, spoke like that, chanted like that, ba, bee, boo, ba, just like they uttered this type of sounds in their language due to they are little ones, क्योंकि वो सब कैसे थे? बहुत ही छोटे बच्चे थे. Down there at the back of the room, but here the situation is little bit different. मतलब at the back side पर कौन बैठा हुआ था? just recall your memory, कौन बैठा हुआ था? ओल्ड होसर. होसर इज़ द सरनेम. होसर क्या है बच्चों? सरनेम है. और ये सरनेम कहाँ की होती है? फ्रांस की होती है. ओल्ड होसर इसीलिए बोला गया है कि जो होसर था वो कैसा था? थोड़ा सा बूढ़ा था. वो किसके साथ बैठा हुआ था? विथ हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे के साथ बैठा हुआ था. एंड इन हिज हैंड ही हैज़ अ प्राइमर, उसके हाथों में क्या था? प्राइमर था. अब ये बच्चों प्राइमर क्या होता है? तो प्राइमर इज़ द वन टाइप ऑफ, हमारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि देसी साहब. उसमें वो क्या करेगा? टू गेट द नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. वो फ्रेंच लैंग्वेज का क्या करेगा? नॉलेज गेट करेगा. अल्फ़ाबेटिक जो वर्ड्स होते हैं उसका वो क्या करेगा? नॉलेज गेट करेगा. तो वो अपने स्पेक्टिकल को पकड़ के होल्ड करके क्या कर रहा है? प्राइमर के साथ. प्राइमर उसने कहाँ रखी हुई है? ऑन द नीज पर रखी हुई है. और वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है. देन आफ्टर ही ऑल्सो स्पेल्ड द लेटर्स. वो भी क्या कर रहा है? जो लेटर्स, जो अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. इट मीन्स ही वॉज ऑल्सो क्राइंग. वो भी क्या कर रहा था? रो रहा था. नॉट ओनली आई, मैं अकेला नहीं रो रहा था, बट ओल्ड हॉसर वॉज ऑल्सो क्राइंग. वो भी रो रहा था. हीज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस. उसकी आवाज़ भी कैसी हो गई थी? शिवर, ट्रेम्बल्ड हो गई थी. किसकी वजह से? इमोशंस की वजह से. सेम सिचुएशन वॉज फेस्ड बाय ओल्ड फ्रांस. ओल्ड फ्रांस की भी यही सिचुएशन हुई थी. इफ़ यू रिकॉल योर मेमोरी, जस्ट लाइक दैट, व्हेन हिज टीचर आस्क्ड हिम टू just recite the rules of the participles, at that time he stood like this way, and also due to emotional feelings his voice was choked and he would not explain each and every rules very accurately, very perfectly. So here not only he but also old Hauser was crying and also trembled with his emotions of feelings, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Now this is the personal experience of France, and France said like that everybody wanted to cry and also wanted to laugh, nothing else. Oh, how well I remember it, that last lesson. अरे मुझे कितना अच्छे से याद है मेरा जो लास्ट लेसन है वो. Actually in the beginning of this in his school going days he was never be very attentive and also careful about the units and about the study of his standard, and he never just thought like that why should I study, मैं क्यों पढ़ूँ. But here he recall and he just thought like that कि मुझे ये मेरा जो यूनिट है वो कितना अच्छे से याद है. पहले तो मुझे मेरा यूनिट कभी भी इतना अच्छे से याद नहीं था, पर आज का ये यूनिट मुझे कैसा है? बहुत ही अच्छे से याद है. थर्ड पैरा, all at once the church clock struck 12.
Now this is the twisting point of this unit. Then the Angelus at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. Now this was the turning point, twisting point of our unit and also in the France school. Now Mr. Hamel was teaching the students, but at that time 12 o'clock struck on the wall, struck on the watch. घड़ी में कितने बजे? 12 बज चुके थे. एंड इट इंडिकेट्स, वो क्या इंडिकेट करता था कि अब कोई भी कौन सी लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ेगा नहीं. सो इमीडिएटली मिस्टर हैमल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर. वो अपनी चेयर से क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं. नाउ आई लुक्ड एम हैमल सो टॉलर. मुझे जो एम हैमल थे वो कैसे लग रहे थे? बहुत ही हाइटेड लग रहे थे. जैसे आई नेवर ऑब्जर्व्ड फॉर्मर, मैंने तो कभी फॉर्मर लेक्चर में ऐसा उनको ऑब्जर्व नहीं किया था. बट राइट नाउ आई रियलाइज्ड दैट हीज फेस वॉज पैल एंड वीक. वो मुझे कैसे लग रहे थे? वीक. और कैसे लग रहे थे? बहुत ही पैल. पैल मतलब के बहुत ही फिक्के लग रहे थे. एंड ऑल्सो वी हर्ड, हमने क्या सुना था? तो ड्रिलिंग ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स नियर अवर विंडो. मतलब कि हमारे क्लासरूम के पास क्या थी? एक विंडो थी, वहाँ दूर से साउंड आ रहा था मार्चिंग साउंड ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स. के पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? मार्चिंग करते हुए आ रहे हैं. एंड अवर मास्टर हैमल वॉज अपसेट, डिसअपॉइंटेड. वो क्या हो गए? एकदम अपसेट हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए. एंड ऑल्सो पैल कॉम्प्लेक्शन, उनका जो चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन था वो कहाँ कैसा हो गया था? बिल्कुल पैल, मतलब कि एकदम फिक्का हो गया था. नाउ which line was uttered by M. Hamel after listening the marching of the Prussian language? My friends, said he, I, just like I, it means now he was shocked. Now he was shocked. But something shocked him. He could not go on. He was trying to utter a one line towards the students, but due to overwhelming of the feelings, he could not express himself. वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए नहीं. So he just said like that I and then stopped. Last second paragraph. Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Now immediately he turned to the blackboard. वो क्या हुए? ब्लैकबोर्ड के सामने घूमे. टेक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने क्या लिया? एक चॉक का टुकड़ा लिया. एंड देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ द चॉक, उन्होंने बहुत ही बड़े हैंड राइटिंग से, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतने हैंड राइटिंग से उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस. उसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लीव फ्रांस. विवे ला फ्रांस मीन्स क्या होगा? लॉन्ग लीव फ्रांस. आई रिपीटिंग, विवे ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लीव फ्रांस. आपके मीनिंग्स में ये पूछा जाएगा बच्चों आपके एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवे ला फ्रांस. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग हियर. ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ. देन ही स्टॉप्ड, वो क्या हो गए? स्टॉप हो गए. एंड लीन, थोड़े से झुके. His head against the wall and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go now. Now this was the last scene of the classroom of France. And now his teacher, Master Hamel, just write down very big handwriting, with very big handwriting, one line, Vive la France. And then after, he stopped and just लाई डाउन हिज फेस. उन्होंने अपना चेहरा क्या कर दिया? नीचे कर दिया. एंड हेड अगेंस्ट द वॉल, और वॉल के सामने उन्होंने अपना चेहरा क्या कर दिया? ऐसे झुका दिया. और चेहरा झुकाने के बाद उन्होंने यूजिंग द जेस्चर साइन, उन्होंने क्या किया? एक साइन यूज़ किया. कौन सा साइन? वो बोले नहीं, वो बोले बिल्कुल भी नहीं. और उन्होंने कहा द क्लास वॉज डिसमिस्ड. दिस इज़ द जेस्चरिंग साइन. जो हम इशारों से जो बात करते हैं वी विल कॉल इट अ जेस्चर. उन्होंने इशारों से कहा कि अब हमारा क्लास क्या हो गया है? डिसमिस हो गया है. नाउ यू मे गो, आप सब क्या कर सकते हो? जा सकते हो. सो दिस वॉज द लास्ट लेसन बाय मिस्टर हैमल. एंड दिस वॉज द रियलाइजेशन, मे बी ऑब्जर्वेशन एंड मे बी डीपर इनर सेंस ऑफ फ्रांस, है ना. सो फ्रांस इज अवर नैरेटिव, मीन्स अल्फोंसो ड्यूरे इन द फॉर्म ऑफ फ्रांस जस्ट शेयर हिज एक्सपीरियंस. वो हमारे एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं? उनके एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं? हमारे सामने शेयर कर रहे हैं. अब हियर इज़ द कंप्लीशन ऑफ योर यूनिट. बट मैं आपको थोड़ा हिंदी में भी समझाना चाहती हूँ इस स्टोरी को.
तो थोड़ा फटाफट से शॉर्ट ग्लैंस ले लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट और क्विक पॉइंट्स। सबसे पहले हमारे जो नैरेटर है उनका नाम क्या है, अल्फोंस डूडे है। वो क्या है, तो एक नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। उन्होंने ये स्टोरी है वो कहाँ सेट की है, इट मीन्स कहाँ रिटर्न की थी, कौन से ईयर में, तो 1870-71 के अंदर ये स्टोरी क्या हुई थी, सेट हुई थी। इस स्टोरी के अंदर क्या लिखा गया है, तो फ्रैंको प्रशियन वॉर के बारे में लिखा गया है। फ्रैंको पर्शियन वॉर के अंदर जो प्रशियन थे उनको कौन लीड कर रहा था, लीड इट मीन्स उनको कौन गाइड कर रहा था, तो जो बिस्मार्क है वो उनको क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था। और लास्ट में विनर कौन बनता है, जो प्रशिया है वो जीतता है और जो फ्रांस होता है वो क्या करता है, हार जाता है। और उसकी वजह से जो जर्मन है, जर्मन की जो कैपिटल है वो क्या है, बर्लिन है। तो बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आता है कि फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट इट मीन्स कौन, तो अल्सास एंड लॉरेन, वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज, सॉरी कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल सिखाई जाएगी नहीं। ओनली एंड ओनली जर्मन लैंग्वेज दे कैन स्पीक एंड ऑल्सो दे कैन राइट, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी होगा नहीं। स्कूल के अंदर जब फ्रांस जा रहा है, यहाँ जो हार्ट ऑफ द कैरेक्टर है, हार्ट ऑफ द बुक है, वो कौन है, फ्रांस, इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फोंस डूडे। तो वो अपनी जो रियलाइजेशन है, वो जो अपने एक्सपीरियंस है वो यहाँ शेयर करा है कि मैं कैसा था, एक स्कूल गोइंग बॉय था, मुझे स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था सुबह सुबह। पर क्यों यार अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं डर रहा था। किसकी वजह से डर रहा था, क्योंकि मुझे मेरे जो एम हैमल है, मिस्टर हैमल है, वो मुझे क्या करेंगे, स्कोल्डेड करेंगे, डांटेंगे। पर मैं ये सारे जो टेम्पटेशन थे, विच टाइप ऑफ टेम्पटेशन ही ऑब्जर्व, कौन से टाइप के टेम्पटेशंस उसने ऑब्जर्व किए, कि जैसे जंगलों में से बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी और पूरा दिन कैसा था, बहुत ही अच्छा सा जा रहा था, एकदम ब्राइट था। पर उस टाइम उसने अपने आप को क्या किया, विलिंगली प्रिपेयर किया और बोला कि नहीं भाई मैं क्या करूँगा, स्कूल में जाऊँगा, भले ही मैं क्या हो जाऊँ, लेट हो जाऊँ। और वो क्या करता है, बहुत ही जल्दी से, वेरी हरिडली ही रीच्ड द स्कूल, वो क्या करता है, स्कूल पर पहुँचता है। बट इन द मिडल वे ऑफ द स्कूल, पर जब वो स्कूल पे जाता है बिल्कुल बीचों बीच रास्ते में, ही ऑब्जर्व वन नोटिस बोर्ड, उसने क्या किया, एक नोटिस बोर्ड ऑब्जर्व किया। उस नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, कि ये जर्मन लैंग्वेज के बारे में लिखा था कि नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि 2 ईयर्स से जो सारी बैड न्यूज़ होती है, वो बैड न्यूज़ कहाँ से आती थी, इस नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई आती थी। सो ही वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, व्हाट वुड बी द मैटर ऑफ नाउ ऑन द नोटिस बोर्ड, ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अब कौन सी नई न्यूज़ आई होगी, कौन सी बैड न्यूज़ आई होगी। एंड वैन ही रीच टू द स्कूल, जब वो स्कूल पे पहुंचता है तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि स्कूल का एटमॉस्फेयर जनरली कैसा होता है बच्चों, सब जगह पर क्या होती है, आवाज़ आती रहती है। इवन द साउंड ऑफ द स्कूल ऑल्सो रीच्ड टू द नियर बाय स्ट्रीट में भी क्या होता है, पहुंचती है उसकी, मतलब स्कूल का ये जो शोरगुल होता है वो पहुंचता है। पर उसने ऑब्जर्व किया कि यार आज तो कुछ आवाज़ ही नहीं है। सिर्फ उसको आवाज़ किसकी आई, तो जो डेस्क पर जो बच्चे लिख रहे थे, स्क्रैचिंग पेन, मतलब कि जो पेन के घिसने की ही आवाज़ आ रही थी, नथिंग एल्स, कोई भी ज़्यादा आवाज़ आ रही नहीं थी। और एवरी टाइम अगर वो स्कूल में लेट हो जाता था तो वो किसकी हेल्प लेता था, आसपास के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें आवाज़ ज़्यादा आती है, उसकी हेल्प लेकर वो धीरे से क्या करता था, चुपके छुपा के अपने टीचर की नज़र से वो क्या करता था, क्लास में पहुंच जाता था। पर इस बार तो आवाज़ भी नहीं थी, तो वो क्या हो गया, बहुत ही टेंशन में आ गया कि शायद उसके टीचर उसको ऑब्जर्व कर देंगे और उसको पक्का क्या करेंगे, स्कोल्डेड करेंगे। सो ही वॉज टू मच अफ्रेड, तो वो क्या हो गया, बहुत ही डर गया। बट उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अचानक से मेरे टीचर ने मुझे क्या कर दिया, खड़ा कर दिया और मुझे पूछा कि चलो अब पार्टिसिपल्स का क्या करो, आप रूल्स बताओ। पार्टिसिपल्स का रूल्स मतलब क्या होता है बच्चों, तो पार्टिसिपल्स ग्रामर के अंदर क्या होता है, एक चैप्टर है, उस चैप्टर्स के रूल्स उसको क्या करने थे, बताने थे सर को। पर वो बता पाया नहीं, वो सोच रहा था कि मैं मेरे टीचर को बहुत ही एक्यूरेट आंसर दूंगा, पर वो आंसर दे पाया नहीं। उसकी आवाज़ क्या हो गई थी, बिल्कुल चॉक्ड हो गई थी विद द इमोशनल फीलिंग्स, उसके अंदर कैसी थी, इमोशनल फीलिंग्स भी आ गई थी उसकी वजह से। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे जो टीचर है उन्होंने आज बड़े ही अच्छे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े तो वो कभी भी नहीं पहनते, पर्टिकुलर वो कब पहनते, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कोई कंपटीशन हो तब, संडे मॉर्निंग पर ये तो पहनते हैं। देन आफ्टर ही रियलाइज्ड दैट, फिर उसको पता चला कि जब मिस्टर हैमल ने ये डिक्लेयर किया कि भाई अब से हम कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ पाएंगे नहीं, एंड दिस वॉज माई लास्ट लेसन, ये मेरा कौन सा लेसन है, लास्ट लेसन है। सो उसको क्या होने लगा, बहुत सारी चीज़ें मिस करने लगा। वो सबसे पहले वो क्लासरूम मिस करने लगा। दैन आफ्टर उसको ये जो सारी बुक्स कैसी लग रही थी,
जस्ट लाइक एक बोझ लग रही थी, लगेज टाइप लग रही थी। अब वो उसके लिए क्या बन गए, एक फ्रेंड जैसे बन गए। उसको मिस्टर हैमल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, बट यट ही वॉज मिसिंग मिस्टर हैमल ऑल्सो। उसको अपने टीचर को भी वो क्या कर रहा था, मिस कर रहा था। हियर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लुक ऑफ द मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल का जो लुक था वो कैसा था, उन्होंने कौन से, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स ही वेयरिंग, तो उसने क्या पहना हुआ था, तो उसने 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई थी, सिल्क ब्लैक हैट थी, फ्रिल्ड उसका कोट था, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने क्या करे थे, ग्रीन कलर का कोट था, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। अब उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि क्या ये मांजरा है यहाँ का। और लास्ट में जब वो क्लास में पढ़ रहे होते हैं तब सब इतने सिंसियर हो जाते हैं, इतने सिंसियर हो जाते हैं कि क्लास के अंदर एक इंसेक्ट एंटर हो जाता है तो भी किसी का ध्यान ऊपर की ओर जाता नहीं है। सिर्फ ये हमारे जो फ्रांस है वो ऐसा सोच रहे हैं कि वाह सब कितना फोकस करके अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि वो सब क्या है, बहुत ही अलर्ट है और उनको सिर्फ क्या पढ़नी है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी है। पर मिस्टर हैमल ने एक बहुत ही एडवाइस दी और वो एडवाइस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो एडवाइस ऐसी थी कि कोई भी कंट्री के अंदर अपनी जो मदर टंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और वो हमारी क्या होती है, एक मास्टर की होती है कि हम प्रिजन से अपने आप को क्या कर पाए, एस्केप कर पाए। मतलब कि अगर हमको अपने आप बचाना है कोई दूसरी कंट्री से, नेशन से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभुत्व लाना पड़ेगा, कमांड लाना पड़ेगा ऑन आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज पर। एंड फ्रेंच इज़ द की। फ्रेंच आपके लिए क्या है, एक मास्टर की है, ऐसा उन्होंने बोला। और लास्ट में जब मिस्टर हैमल ने ये सुना कि देयर वॉज अ ड्रिलिंग साउंड ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स, उनकी जो विंडो थी उसके नियर बाय प्रशियन सोल्जर्स की मार्चिंग हो रही थी और घड़ी में कितने बजे, 12 o'clock बजे, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि नाउ दिस वॉज द एंडिंग ऑफ माई लेसन, ये अब मेरे लेसन का क्या है, एंडिंग है। और उन्होंने बड़े हैंड राइटिंग से बोर्ड पे लिख दिया विवेला फ्रांस, मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो कुछ भी एक भी लाइन अटर्ड नहीं कर पाए, वो भी क्या हो गए, चॉक्ड हो गए विथ इमोशनल फीलिंग्स। और लास्ट में उन्होंने बोल दिया यूजिंग द जेस्चरिंग साइन यूज़ करते हुए उन्होंने ऐसा बोला कि भाई यू मे गो नाउ एंड माई क्लास वॉज डिसमिस। ओके, हियर इज़ द summary in your optional language and also in English language. Now we just move on and focus on the hard words, unfamiliar words of your unit, which I have already sent in the form of PDF to your WhatsApp group. Okay, but here I need to write some important unfamiliar words. So just refer this word, dread. Dread means what? Fear, डरना. Bulletin means notice. ब्लश्ड मीन्स एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मतलब कि कन्फ्यूज़न अनुभव, मतलब कि कन्फ्यूज़न फील करना। ग्रेव, ग्रेव मीन्स वेरी सीरियस। एक्सियस मतलब कि ईगर, बहुत ही आतुर। एनस्लेव्ड मतलब कि डोमिनेटेड, मतलब कि गुलाम बनना। स्क्रैचिंग मतलब कि रबिंग, वी विल कॉल लाइक दिस, द साउंड ऑफ दिस इज स्क्रैचिंग। ओके, देन आफ्टर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग it means one type of training of the soldiers. Bustle, bustle is the most important word in this unit and that means movement. Okay, हिलना जुलना। resist मतलब कि oppose, कोई भी चीज़ का क्या करना, oppose करना। solemn मतलब कि very serious, बहुत ही क्या हो जाना, serious हो जाना। next one, gesture, gesture means sign, sign language, we will call it sign language. littlest जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, smallest वो। रिप्रोच मतलब के ब्लेम, दोषारोपण करना। स्ट्रोक मतलब के ब्लो, प्रहार करना। पैल इट मीन्स बहुत ही फिक्का, विक। रैचिस मतलब के रास्कल्स, नॉनसेंस लाइक दैट। यूनिशन टुगेदर, इन यूनिटी। ओके, गेजिंग स्टैरिंग, घूर घूर के देखना। टेम्पटिंग इट मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, आपको अट्रैक्ट करे वैसा। नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ द अनफैमिलियर वर्ड, बट here is a most important phrases which you just find out in the front page of your unit 1 exactly below the narrator's explanation. Okay, now these 4 phrases are here with its meaning. First one is in great dread of, in great dread of, it means afraid, afraid means डरना। Second one, a great bustle, सेकेंड वन अ ग्रेट बसल, अ लॉट ऑफ मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा क्या होना, आवाज़ आनी। थर्ड वन, थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस, इट मीन्स
वॉर्न आउट मतलब कि क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अगर हमने किसी चीज़ का यूज़ कर लिया हो ना तो उसकी कंडीशन कैसी लगे, थोड़ी सी वर्स्ट लगे, पुअर लगे, जस्ट लाइक। एंड डर्टी एट द एजेस ड्यू टू फ्रिक्वेंट यूजेस, बार बार अगर आप कोई चीज़ का क्या करते हो, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, तो वो उसका जो ओरिजिनल लुक जो होता है वो क्या करता है, गवा देता है। समझ में आई बात? जस्ट लाइक इफ आई एम गिविंग यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जस्ट लाइक आपने नए कपड़े परचेस किए हैं, बार बार उसका वॉश होगा, आफ्टर वन वॉश सेकंड वॉश क्या हो जाएगा, उसके जो कलर है वो लिटिल बिट फेड अप हो जाएंगे और उसका जो लुक है, जो शाइनिंग लुक है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चला जाएगा, लाइक दैट। देन आफ्टर रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, इट मीन्स ब्लेम का मतलब क्या होता है, दोषारोपण। स्टूडेंट्स इन योर एग्जाम, according to your paper style, you just find out this type of phrases and also this type of unfamiliar words. With its meaning you have to give the answer of their meanings, whether it is phrases or whether it is unfamiliar word. So now here is the completion of unit 1. If you have any query then you can share your views. Then okay, see you, bye.